Yes, good morning, students. Today we will start our new topic, that is your heredity. Some of the students having problem in this chapter. So heredity means transfer of characters from one generation to next generation. Right? The transfer of character from one generation to the next generation, that is we can say that is known as your heredity, and this factor is known as the transfer of characters, that is known as your inherited characters. The inherited characters are those characters which are transferred from one generation to the next generation, maybe from parents to offspring and from offspring to the next generation, etc. That is known as these characters are known as your inherited character, and this phenomena is known as your heredity. As we have discussed about the asexual reproduction and sexual reproduction. In the asexual reproduction, which we have discussed, that there is only one single parent is required for the new generation. In this character, there will be a very little or no variation takes place. या तो नहीं होगी या बिल्कुल ही लिटल होगी जो ऑब्जर्वेबल नहीं होगी, तो उस टाइप के में क्या होगा, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर जाएंगे वो सिमिलर होंगे. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग द शुगर केन फील्ड, उसमें you will see that all the sugar cane will look like similar because all are produced asexually. सारे के सारे asexually produce किए गए हैं. तो उसमें देखेंगे कि जितने भी आपके शुगर केन के करेक्ट फील्ड में आपके शुगर केन के crop है, that all look similar. There will be very little or unobservable changes or variation will take place. But in the sexual reproduction, there are the both parents are required. Both parents are required means they reproduce sexually. If they reproduce sexually, means the character from the father as well as mother will go into the offspring. Right? So this offspring are having the two characters, both are having the mother and the father. What does it mean? For example, हम किस कलर का ले या हाइट का भी एग्जांपल, किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं. उसमें आप देखोगे कि हर पेरेंट में, मतलब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, तो जो न्यू जनरेशन आएगी उसमें आपका हाइट का एग्जांपल ले, जिसमें हाइट का करेक्टर मदर से भी आएगा, फादर से भी आएगा, एंड वी डोंट नो व्हिच करेक्टर विल बी डोमिनेंट इन द नेक्स्ट जनरेशन. डोमिनेट का मतलब है विच विल शो और डोमिनेट ओवर द अदर, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर दे करेक्टर, उसको हम बोलेंगे डोमिनेट करेक्टर. तो कौन सा करेक्टर डोमिनेट करेगा, वी डोंट नो अबाउट दिस, एंड the other character will become recessive in the nature. तो यहाँ पे दो टाइप के characters बनेंगे. One will be known as your dominant and second one will be known as recessive. जो character अपने आप को express कर दे next generation के अंदर, that is known as your dominant character, और which cannot express itself in the next generation, that is known as your recessive character. जैसे मैं आपको height का example दे दी कि मान लो father की height 6 feet है, 6 फीट, और मदर की हाइट 5 फीट है, कुछ भी हो सकता है, और जो न्यू जनरेशन आई है उसकी हाइट 6 फीट के आसपास आई है, तो हम कहेंगे कि उसके अंदर जो करेक्टर डोमिनेंट हुआ वो किसका है, वो फादर का करेक्टर उसके अंदर डोमिनेंट हुआ, और मदर का करेक्टर उसके अंदर क्या हो गया, रिसेसिव हो गया. मे बी जो करेक्टर इसमें से मदर से बच्चे में आया था, ऑफस्प्रिंग में आया था, जो उस टाइम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, मे बी इट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द नेक्स्ट जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन. हो सकता है वो अपने आप को किसी भी जनरेशन में क्या कर सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, और उस टाइम वो आपका क्या बन जाए, रिसेसिव से डोमिनेंट कैरेक्टर बन जाए. यानी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी, एट दैट टाइम बोथ कैरेक्टर फ्रॉम मदर एंड फादर विल बी देयर, एंड देयर विल बी डीएनए कॉपिंग. ये मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस देयर विल बी डीएनए कॉपिंग इज देयर, एंड ड्यू टू inaccuracy, each and every time there will be some inaccuracy will take place. Inaccuracy का मतलब है as it's not the similar copy will be there. जब वहाँ पे सिमिलर कॉपी बिल्कुल नहीं बनेगी, तो कुछ ना कुछ डीएनए कॉपिंग हुई है, फ्रॉम मदर से आई है, फादर से आई है, दोनों की कॉपी में कुछ ना कुछ चेंजेस हो गए, और जिसकी वजह से जो चेंजेस आएंगे वो नेक्स्ट जनरेशन में ऑब्वियसली ऑब्जर्वेबल होंगे.
और जो उससे नेक्स्ट जनरेशन आएगी, अब जो ये ऑफस्प्रिंग आया इसके अंदर तो वो करेक्टर आपके चेंज होके आए, जो उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन जाएगी उसमें मदर फादर के तो है ही करेक्टर, साथ साथ में उसके अपने भी करेक्टर है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसके अंदर और ज्यादा चेंजेस आएंगे, फिर उसके बाद और ज्यादा चेंजेस आएंगे, इस तरह से उसके अंदर चेंजेस आते रहेंगे, यानी वेरिएशन थोड़ी थोड़ी आती रहेगी, दैट कैन बी ऑब्जर्वेबल इन द सेक्सुअली रिप्रोडक्शन प्रोसेस, कि जिसमें आपकी बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस फॉर द रिप्रोडक्शन, and the, both are contributing equally for transfer of the character from one generation to the next generation. We will discuss later. And DNA copying होती है इसके अंदर, जब DNA copying होता है तो ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेस और किसी भी वजह से उसकी जो प्रोटीन फॉर्मेशन होते हैं उसमें कुछ भी चेंजेस आ जाए, और जैसे प्रोटीन फॉर्मेशन में चेंजेस आएंगे आपकी जो डीएनए की कॉपी है उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाएगी, और जब उसमें वेरिएशन आएगी तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसके अंदर वो करेक्टर थोड़े से डिफरेंट होंगे। इसीलिए व्हेन यू विल सी ऑल ओवर द वर्ल्ड the human population, you will look like that, all are having the two eyes, one nose, legs, hands, etc. each मतलब basic similar character will be same, but आईज का कलर अलग हो गया, हेयर का कलर अलग हो गया, कलर बॉडी का कलर अलग हो गया, वॉइस अलग होगी, हाइट अलग होगी, तो ये करेक्टर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, किसकी वजह से, ड्यू टू योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जब डीएनए कॉपिंग में इनएक्यूरेसी आते हैं, at that time there are some changes will take place, and these changes will take due form in the इनहेरिटेंस कह सकते हैं या ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स कह सकते हैं, जिससे थोड़ी थोड़ी इनएक्यूरेसी हर बार आएगी और थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हर बार आपका उसके अंदर जनरेशन के अंदर आता रहेगा, और ये जनरेशन टू जनरेशन जो चेंजेस होते रहेंगे, आफ्टर सम टाइम अ न्यू स्पीशीज विल बी फॉर्म, एंड दैट न्यू स्पीशीज विल बी इवॉल्व फ्रॉम द प्रीवियस वन, और जो ये करेक्टर्स में धीरे धीरे चेंजेस आए हैं दैट विल लीड टू द इवोल्यूशन एज वेल एज दी, उसके साथ साथ क्या करेगा ये जो आपके ये प्रोड्यूस हुए हैं डीएनए कॉपिंग की वजह से या इनएक्यूरेसी की वजह से, दैट कैन सर्वाइव बेटर इन द एडवर्स कंडीशन। हम सिंपली कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया वगैरह है दैट कैन सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन, चाहे गर्म बहुत ज्यादा हीट हो या बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर हो, तो किसी भी टेम्परेचर पे क्या कर सकते हैं, वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज ड्यू टू योर इनहेरिटेड करेक्टर और डीएनए एक्यूरेसी और स्पेशिएशन और इवोल्यूशन की वजह से वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसके अंदर चेंजेस आते हैं, so that they can adapt themselves to the environmental conditions. Okay, is there any doubt related to this? Yes, but do you think there is any doubt? Yes, students, is there any doubt related to that? Yes, bacteria can reproduce sexually. जरूरी नहीं है बैक्टीरिया सिंगल सेल होंगे, सिंगल सेल होंगे तो वो आपका एसेक्सुअली भी प्रोड्यूस करेंगे, बट दे मे बी मल्टी सेलुलर, so they can reproduce sexually, right? So next is your we can say that next is your inherited traits. Inherited traits का मतलब है कि inherited का मतलब मैंने बताया था ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, मींस traits का मतलब है कैरेक्टर्स, और inherited का मतलब ट्रांसफर, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर जो कैरेक्टर ट्रांसफर हुए उन कैरेक्टर को हम क्या बोलेंगे, इनहेरिटेड ट्रेट्स। इसी तरह से एक होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स, मैं जानबूझ के दो चीजें इकट्ठी बता रही हूँ क्योंकि ट्रेट्स है तो दोनों ट्रेट्स आपको पता होने चाहिए कि एक होते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स, वन विल बी योर एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्वायर्ड व्हिच विल लीव ओनली इन सिंगल जनरेशन, जो सिर्फ उसी जनरेशन में रहेंगे, एंड दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड from parents to offspring, but inherited traits are those characters which can be transferred from generation to generation. जैसे इसमें सिंपल एग्जांपल तो मैं आईज का कलर हो सकता है, हाइट हो सकती है, और शेप ऑफ द बॉडी हो सकते हैं, जैसे नोज की शेप होती है, लिप्स की शेप होती है, तो कुछ भी इसमें कैरेक्टर्स हो सकते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट्स में क्या होगा, जो सिर्फ और सिर्फ उसी जनरेशन के अंदर रहेगा, and that character will not be transferred to the next generation, and that is known as your acquired traits. For example, इसमें मैं कहूँगी for example we are having a mice है, और हमने क्या किया, उसकी just जो tail है that will be cut and it produce the new generation, and in the new generation all the
ऑफस्प्रिंग आर हैविंग द न्यू टेल, सबके पास अपनी अपनी टेल आई है, तो हम क्या कहेंगे कि उसकी हमने टेल काट दी, उसके बाद उसने रिप्रोड्यूस किया, फिर भी सबके पास टेल आई, हमने दोबारा से फिर उससे काटे किसी और की फिर की, तो दैट एक्सपेरिमेंट विल बी डन सो मेनी टाइम, एंड ईच एंड एवरी टाइम द न्यू जनरेशन विल हैव द tail. What does it mean? That tail does not involve in the sexually reproduction. Means वो उसमें reproduction नहीं करती. That character will not be transferred to the next generation. और जब वो next generation तक character नहीं जाएगा, तो that will be known as a acquired pair. उसी तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे किसी को बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है, तो वो करेक्टर उसी के अंदर रहता है. जरूरी नहीं कि जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसके अंदर भी वो बीपी की प्रॉब्लम हो या हाई ब्लड प्रेशर हो, हाइपरटेंशन है या कोई भी बीमारी ऐसी. If it cannot be moved from one generation to next generation, then these characters are known as the acquired trait. लेकिन inherited में वो characters, वो बीमारी एक generation से दूसरी generation के अंदर जाएगी. जैसे मैंने आइस का कलर बताया, हाइट बताया, उसी तरह से डायबिटीज की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम भी जनरेशन टू जनरेशन आपकी क्या कर जाती है, मूव कर जाती है. तो दैट विल बी योर इनहेरिटेड ट्रेट्स. तो दैट इज द इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड द एक्वायर्ड ट्रेट्स. एंड इन द इनहेरिटेड ट्रेट्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं ये सारे के सारे, तो इसमें एक ये दिया हुआ है कि इनहेरिटेड ट्रेट्स में कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंस, कितनी सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंस है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. यू कैन सी बिटवीन योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स. आप अपने और अपने बच्चों के पेरेंट्स के साथ में क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि जैसे मैं आपको एक सिंपलेस्ट एग्जांपल दूं, जैसे ये ईयर लॉब्स होते हैं. इफ दीज ईयर लॉब्स आर अटैच्ड, अभी मैं देखो यहाँ से ओपन है, इफ दीज विल बी अटैच्ड इस लाइक से, तो आप अपनी क्लास में या अपने आप चेक कर सकते हैं और अपने पेरेंट्स के भी देख सकते हैं कि उनके भी अटैच्ड ईयर लॉब्स है या लूज ईयर लॉब्स है, जो फ्री ईयर लॉब्स है. तो जो लोअर पार्ट होता है इसको ईयर लॉब बोलते हैं, कि वेदर इट इज अटैच्ड और फ्री. वैसे देखने में तो हमें सारे के सारे सेम लगेंगे, सिमिलैरिटीज बोथ होगी फ्री और अटैच्ड, similarities both होंगे, but if you will look closely there will be some differences between you and your parents. आपको कुछ ना कुछ differences लगेंगे. किसकी वजह से है? That will be due to inheritance of the character from one generation to the next generation, because in these case both parents equally distribute. दोनों जो आपके पेरेंट्स हैं, जैसे मैं आपको अभी आगे बताऊंगी कि there are the 23 pair of chromosomes are present. 23 पेयर्स है टोटल, उसमें से जो लास्ट पेयर है उसको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, या फिर उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स. तो मींस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो पार्टिसिपेट करते हैं टू ट्रांसफर द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. इसमें से 23 पेयर्स में से 23 मदर से आएंगे और 23 किससे आएंगे, फादर से, मदर से और फादर से. व्हाट डज इट मीन? कि equally distribute, they equally distribute in this case. यानी सेम करेक्टर यहाँ से, सेम करेक्टर यहाँ से, कौन सा डोमिनेट करेगा वी डोंट नो, एंड ड्यू टू द सेम कंट्रीब्यूशन ऑफ देयर, तो देयर विल बी स्मॉल वेरिएशन टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट जनरेशन. और जब नेक्स्ट जनरेशन में ये दोनों के करेक्टर तो होंगे, अब वो जो नेक्स्ट जनरेशन वाला वो किसी और के साथ रिप्रोड्यूस करेगा, तो दोबारा से उसके अंदर करेक्टर्स में क्या आएगा आपका, फिर से उसके अंदर अब 4 टाइप हो जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे, थर्ड अपना उसका हो जाएगा, फोर्थ उसका पार्टनर का हो जाएगा. तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसमें चारों में से किसी का भी करेक्टर डोमिनेट और किसी का भी रिसेसिव हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दैट. तो ये आपका मैंने बताया कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो देयर विल बी सम डिफरेंसेस विल बी देयर, एंड दिस डिफरेंसेस विल बी ड्यू टू इनएक्यूरेसी इन द डीएनए कॉपी. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, जो आपके ईयर लॉब्स है, जो लोअर पार्ट होता है ईयर का, इफ यू विल सी दैट, तो यू विल सी दैट कि इफ इट इज फ्री और अटैच, अब आप स्कूल में तो होने कीजिए, आपने फ्रेंड्स के चेक कर कि अटैच है, so you can see at your family ki how many are having the attached earlobes or how many are having the free earlobes. If you are having attached, whether your father or mother, if they don't know have, then your grandparents, whether maternal or paternal, kahan se aaye, you can see that ki which character will become dominant in your generation, so that will be your inherited traits. Okay, अब मेंडल contribution कि मेंडल ने inheritance of traits के कुछ rules दिए थे. यहाँ से आप थोड़ा सा देख सकते हैं चैप्टर को. एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स में कोई डाउट है?
Is there any doubt in the inherited traits or acquired traits? You can write in the chat box if you are having any doubt. Otherwise, I am going to start Mendel contribution. No. George Mendel was a scientist. Mendel's experiment. तो उसने क्या कहा कि जब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस होती है तो some characters are transferred from the father and some characters are transferred from the mother. पहले तो आपको बताना चाहिए जॉर्ज मेंडल क्या था. जॉर्ज मेंडल एक साइंटिस्ट था. उसने अपनी जो स्टडी है वो मॉन्टेस्क्यू में की और उसके बाद मैथमेटिक्स और साइंस में स्टडी करने के लिए वो वियना चला गया. जैसे हमारे यहाँ सीटेट वगैरह के एग्जाम होता है तो सर्टिफिकेट चाहिए था उसको, बट ही फेल्ड इन हिज कैलकुलेटिव ऑब्जर्विंग, या उसको लेने में सर्टिफिकेट को लेने में क्या हो गया, वो फेल हो गया. तो ही डिड नॉट बिकम अ टीचर और प्रोफेसर एट दैट टाइम. तो वो अपने दोबारा से जहां मॉन्टेस्क्यू की स्टडी की थी वहीं पे आया और उसने एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिया. और उसने क्या लिया, एक पी प्लांट लिया टू सी द स्ट्रक्चर्स और हाउ द कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन प्लांट वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. अभी बताऊंगी पी प्लांट के बारे में. तो फादर और मदर से दोनों से कैरेक्टर्स आए हैं. तो यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. यहाँ से मान लो मैं कहूँ ये एक्स है, वाई है और ये आपका क्या एक्स है, तो इसके अंदर जो कैरेक्टर जाएंगे वो दोनों के कैरेक्टर जाएंगे, मदर के और फादर के. और which character will be dominant and which will be recessive, that can be seen only when a new generation will come. It is not in our hand that कि acquired character है, जो character हमें चाहिए वो next generation के अंदर आ जाए. Naturally it is not possible. तो उसने क्या किया, अपने केसेस लिए. तो उसने नंबर ऑफ विजिबल कैरेक्टर, उसने पी प्लांट लिया क्योंकि पी प्लांट के अंदर बहुत सारे विजिबल कैरेक्टर होते हैं. विजिबल कैरेक्टर का मतलब है जो इजिली कैन बी सीन फ्रॉम द आई. एक तो टॉलनेस है इसमें. टॉलनेस के साथ जो इसकी सीड्स होती है वो अलग अलग कलर के रहते हैं, येलो, ग्रीन, पिंक, राउंडेड शेप्स हो सकती है फ्लावर्स की. तो ये visible character which can be seen in the pea plant. Due to these visible character, first he choose the pea plant for his experiment. Secondly क्या किया था, इसका जो मैचुरेशन टाइम है वो बहुत कम है. एनुअली 2 बार करता है, तो जल्दी से जल्दी इसमें जनरेशन टू जनरेशन आपकी आ सकती है. तो इसलिए भी उसने इसको पी प्लांट को क्या किया, जल्दी से लिया. थर्डली क्या था कि जो पी प्लांट के जो कैरेक्टर्स है, टॉलनेस का, ड्वार्फिज्म का, सीड्स का, शेप का, उनको इजिली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, एकदम निकाला जा सकता है, सो दैट दे कैन बी क्रॉस ब्रीड और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस टू चेक अ न्यू जनरेशन. ओके, तो वन बाय वन वी विल डिस्कस वन बाय वन. तो सबसे पहले उसने पी प्लांट में कैरेक्टर लिया टॉलनेस का. टॉलनेस में जैसे टी एंड स्मॉल टी, यानी first there will be a cross fertilization takes place. यहाँ से सीखना शुरू करना थोड़ा सा. तो पहले आपको मैं बता रही हूँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. फर्स्ट कॉन्सेप्ट मोनोहाइब्रिड, यानी एक कैरेक्टर को लेके क्या किया गया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन की गई. वो फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा लिया था उसने, टॉलनेस का लिया था. जब टॉलनेस का फर्स्ट कैरेक्टर लिया, ये डोमिनेंट है, टॉल रख दी, कैपिटल रख दिया, और ड्वार्फिज्म के लिए हमने स्मॉल टी रख दिया. तो जब ये आपके मैंने कहा था कि एक इसमें से आएगा, एक इसमें से आएगा, वन फ्रॉम हेयर एंड वन फ्रॉम हेयर. एक जीन यहाँ से है क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम यहाँ से है, दे विल बी क्रॉस फर्टिलाइज्ड. तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया तो वन विल बी कैपिटल टी एंड वन विल बी स्मॉल टी. एंड व्हाट ही सॉ दैट all the plants in the F1 generation, this generation will be known as your F1 generation. All the plants in the F1 generation all are tall in the nature. क्यों tall है, क्योंकि इसमें जो ये टी है, जहां भी कैपिटल टी मिल जाएगा तो समझ लेना कि वो कैरेक्टर डोमिनेंट होके आया है और वही अपना कैरेक्टर शो करेगा. और कैपिटल टी हमने किसके लिए लिया था, टॉल के लिए लिया था. तो ये आपका टॉल प्लांट्स के लिए और ये आपके लिए किसके लिए था, हमने ड्वार्फ के लिए. अब आप कहोगे मैडम इसमें स्मॉल टी भी था. दिस स्मॉल टी विल बी इन द रिसेसिव फॉर्म एंड दिस टी विल बी इन द डोमिनेंट फॉर्म. तो जो डोमिनेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर गया और जो रिसेसिव है उसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया. जब इसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया तो सारे के सारे प्लांट फर्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट क्या निकले आपके, ऑल आर टॉप. इन F1 जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस फर्टिलाइजेशन.
अब जितने भी मेरे फर्स्ट जनरेशन के अंदर जितने भी आ गए, मैंने इनको क्या किया, इन सबको मैंने सेल्फ फर्टिलाइज किया। जैसे मैं यहाँ लिखूं कि कैपिटल T स्मॉल t, this will be T and it will be T and there will be self fertilization. तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन में एक सेल्फ फर्टिलाइजेशन में कोई भी किसी के साथ क्या कर सकता है, आपस में ज्वाइन कर सकता है, यानी एनी करेक्टर कैन बी सीन और एनी करेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड विद द अदर करेक्टर। अब देखो ये वाला टी जब इस टी के साथ करेगा तो दोनों कैपिटल टी, ये वाला इसके साथ करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला इसके साथ करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी और इसके साथ क्या तो स्मॉल टी। व्हाट इज दिस? वी कैन फॉर्म लाइक दिस अ टेबल like this, right? In the F2 generation, F2 generation का मतलब ये है जब हमारे फर्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट टॉल थे, उसमें देखा गया कि फिनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब है फिजिकली अपीयरेंस की, जो फिजिकली एक दिखाई दे, तो देखा गया कि सारे के सारे आपके उसमें टॉल प्लांट्स मिलेंगे। लेकिन जब हमने जीन्स देखा तो उसमें दूसरा जीन्स देखा रिसेसिव था। अब देखो मैंने इसमें क्या कहा था, ये रिसेसिव करेक्टर, but in the next generation one of them will be in the dominating character। यानी जब F2 generation आई तो what is there, F2 generation आई तो देखो एक कैपिटल टॉल के लिए इसमें भी एक टी है, इसमें भी एक टी, तो रेशियो will be 3:1, that will be known as your phenotype ratio। फिनोटाइप रेशियो का मतलब है जेनेटिकली जो फिजिकल अपीयरेंस में जो एक जैसे दिखे तो उनको बोलेंगे फिनोटाइप। तो हमने जब देखा F2 जनरेशन के अंदर कि देखा कि 3 प्लांट आपके बड़े मिले और एक प्लांट आपका क्या मिला, ड्वार्फ मिला, तो रेशियो विल बी 3:1, दैट विल बी नोन एज योर फिनोटाइप रेशियो। अब वेदर द फिनोटाइप और जीनोटाइप, अब जीनोटाइप का मतलब है टाइप ऑफ द जीन्स प्रेजेंट इन देम एंड व्हाट टाइप ऑफ द रेशियो ऑफ जीन्स इन दैट कैरेक्टर्स। अब देखो इसमें दोनों के दोनों की आपके कैपिटल टी, तो कितने कैपिटल टी वाले पूरे के पूरे जिसमें दोनों कैपिटल टी, एक, राइट? अब देखो एक कैपिटल टी इसमें स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हो गए, 2 और स्मॉल टी वाले कितने हो गए, 1। तो ये जो 3:1 का रेशियो था ये अब है 1:2:1 एंड दैट इज नोन एज योर जीनोटाइप रेशियो। इसको हम बोलेंगे जीनोटाइप रेशियो। व्हाई इट इज सेड जीनोटाइप रेशियो? क्योंकि करेक्टर नो डाउट 3 आपके टॉल प्लांट आए, 1 आपका ड्वार्फ प्लांट आए, लेकिन जो 3 में से आपके 2 हैं उनके अंदर आपका ड्वार्फिज्म का करेक्टर भी है, बट इट विल बी इन द रिसेसिव फॉर्म, it cannot express in that generation, maybe it can express itself in the next generation। तो जीन्स उसके अंदर अलग अलग है, यानी एक जीन्स है वो पूरे के पूरे कंप्लीटली टॉल किया, इसके अंदर आपके हाइब्रिड है यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी है और इसके अंदर दोनों के दोनों क्या है आपके स्मॉल टी। अंडरस्टैंड? दैट इज नोन एज जीनोटाइप रेशियो। अब बोलो इसमें कोई डाउट है? समझ में आया नहीं आया? नहीं आया तो बताओ, मैं दोबारा बताती हूँ। जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में कि इज देयर एनी डाउट रिलेटेड टू दिस? देयर इज नो डाउट, आ गया समझ में? गुड। अब ये तो एक करेक्टर दिखाया मैंने किसका, टॉलनेस का। अब मान लो मैं फ्लावर का ले, इसी तरह से हम शेप का भी ले सकते हैं, इसी तरह से हम किसी का भी ले सकते हैं। आपके एग्जाम बुक में 2 करेक्टर्स दिए हुए हैं, फ्लावर का दिया हुआ है कि एक फ्लावर जो आपका पर्पल फ्लावर है और एक क्या आपका व्हाइट फ्लावर है। इस पर्पल फ्लावर को हमने पीपी लिखा है और इसको हमने स्मॉल पी, क्योंकि बिकॉज इट इज डोमिनेटिंग इन द नेचर एंड इट इज रिसेसिव इन द नेचर, तो 1 p from here and small p from here and they will be cross fertilization। जब हमने क्रॉस फर्टिलाइजेशन की तो there will be, so all the flowers in the F1 generation will be purple in the nature because it is dominating in the nature। और फर्स्ट जनरेशन के अंदर जब हमने चेक किया सारे के सारे आपके क्या आए, पर्पल फ्लावर आए, तो we can say that कि all the flowers are purple in the nature and we can say that कि they are, this character is dominating in the nature, right?
अब इसकी कि हमने जब इसको दोबारा से किया सेल्फ फर्टिलाइज किया तो देयर विल बी सेम वही कैपिटल पी स्मॉल पी, तो कैपिटल पी स्मॉल पी, फिर यहीं पे कैपिटल पी स्मॉल पी एंड स्मॉल पी स्मॉल पी। व्हाट इज दिस? ये आपका सिंपली हम कहें ऐसे ये F1 जनरेशन में ना, ये किसमें है आपका F2 जनरेशन में, एंड द रेशियो विल बी 3:1 एंड दैट रेशियो इज नोन एज योर फिनोटाइप रेशियो। और इसी फिनोटाइप रेशियो को यदि मैं चेंज करूं तो दैट विल बी इक्वल टू 1:2:1 एंड दैट इज नोन एज योर जीनोटाइप रेशियो, राइट? तो दिस विल बी नोन एज योर जीनोटाइप रेशियो। अगला जो डाई हाइब्रिड का वो अभी कराऊंगी तो कंप्लीट नहीं होगा, that will be explained tomorrow. Is there any doubt related to this? You can ask me, or otherwise I am going to end this meeting. That will be always when we are taking the single character. जब भी हम मोनो हाइब्रिड लेंगे तो हमेशा 3:1 का रेशियो आएगा. It will not be in the डाई हाइब्रिड क्रॉस. डाई हाइब्रिड क्रॉस जो मैं कल डिस्कस करूंगी उसमें सेम नहीं आएगा, उसमें अलग आएगा ये वाला. ये मोनो हाइब्रिड के केस में हमेशा यही आएगा 3:1 का फिनोटाइप रेशियो. ओके